Hello, students. How are you all? Hope you all fine and enjoying your study. In the previous lecture, we were discussing basic part of the amalgamation. We have discussed the theory and we have discussed how accounting treatment has taken place when amalgamation between two or more company has taken place. Now let's have a practical question and we'll see how to give the accounting treatment when amalgamation is taking place in different situations in the form of different questions. Let's have a question number 1. If you observe, we have been given a balance sheet of two company. One that is a Jhalak Limited and one is a ZIL Limited. We have been given balance sheet, and if you see the first adjustment, we go to the balance sheet later on. If you see, directors of both the company have decided to form a new company, that's a Poonam Limited, to purchase all the asset liability except cash of both the company. That means these two companies, Jhalak and ZIL, have combined together and one company, Poonam Limited, has been formed. A new company, a very important, is a new company. If it is an existing company, then it has not been the amalgamation, then it has been absorption. Amalgamation important criteria is a new company formed to acquire the existing company. So here a Poonam Limited has been formed to acquire the business of Jhalak and ZIL, and they acquire all the asset except cash. So this cash has not been taken over by the purchasing company. This bank balance has not been taken over by the purchasing company. All other assets and liabilities been taken over. What is the requirement? If you see, last requirement is prepare all the necessary ledger account in the books of Jhalak Limited. Jhalak Limited is a selling company. Jhalak Limited is a selling company. These both are, you can say, selling company, and Poonam is, you can say, it's a purchasing company. These two are the selling company. This both are selling company and Poonam is a purchasing company. Now students, one thing you have to be very, very careful. It's always been very important to understand the questions very carefully. Remember, if you understand the question properly, 50% of your task is over there. 50% mistake would be eliminated. So always when you practice on understanding the question, you practice more on learning the question, answer would be the byproduct. Try to understand every information, analyze the information, and then you go for the answer. It would be the fastest and the absolutely correct answer with no mistake at all. So two companies, Jhalak and ZIL, is a selling company, Poonam is a purchasing. What is demanded? Prepare all necessary accounts in the books of Jhalak. That means you are concerned with accounting treatment in the books of selling company, that's a Jhalak. And balance sheet of Poonam. So balance sheet of Poonam Limited, that is new company, purchasing company. So you have to prepare account in the books of Jhalak and balance sheet in the books of Poonam. That means for Jhalak Limited, for preparing the account, one thing we need, that is a PC. As I told you, PC is required for both purchasing and selling companies. So Jhalak, we need a PC. That's the one calculation we have to make. Second, for new company, when they acquire both the company, they need a PC of both the company. That means one calculation which is common is we need to calculate the PC for both the company. Then purchasing company acquire and make some payment which might be more or less. So we need to calculate the goodwill or capital reserve. So two calculation as a part of the answer we have to make it. That is a PC and goodwill capital reserve. PC we require for purchasing company for both the selling companies and goodwill capital reserve. One calculation. Now PC, once we calculate it, it has been used for both the parties, selling company and purchasing company. So one always we have a one calculation, that's a PC. गुडविल कैपिटल रिजर्व परचेसिंग कंपनी रिक्वायर्ड है तो करना है, सिर्फ सेलिंग कंपनी का है वी डोंट रिक्वायर. बट हियर
we require to prepare balance sheet for a purchasing company, so we have to find out the goodwill capital reserve also. Balance sheet. What is a balance sheet? New company's balance sheet is nothing but the combination of both selling companies assets and liabilities. अच्छा, जहां पे asset liability का revaluation होगा, we have to consider it. नहीं है तो as it is we have to total up the things. And new company का share capital. Now to begin with the information, अब आप देखोगे तो purchasing company, अब देखोगे परचेसिंग कंपनी कौन कौन सी असेट अक्वायर करेगा, कौन सी असेट अक्वायर नहीं करेगा. तो जैसे फर्स्ट गुडविल, तो गुडविल तो हमें कैलकुलेशन करना होता है. लैंड बिल्डिंग दे विल अक्वायर इट, मशीनरी, फर्नीचर, पैटर्न, स्टॉक, डेटर, बीआर, these are the assets they acquire. बैंक, as I told you, it's not clearly given, क्लियरली दिया है कि नहीं अक्वायर करेगा. एंड व्हीकल्स, लायबिलिटी में हो गया. Now it is given the all assets and liabilities. अगर आप देखोगे they are not acquiring only assets, they acquire all assets and liabilities. So आपका bills payable हो गया, creditor हो गया. Now question is, P&L reserve, can you say it's liability? No. Purchasing company never acquire it. Share capital, वो तो ओनर है, उसको कभी लेके नहीं जाएगी, उसको तो पेमेंट होगा. So this is not being acquired, उसको तो पेमेंट करेंगे. तो न्यू बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी? ये सारी की सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज, बट नॉट ए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, बिकॉज वो तो शेयर होल्डर्स का है. दैट इज नॉट बीइंग अक्वायर्ड. प्रॉफिट तो अक्यूमुलेटेड होता है, तो बुक प्रॉफिट इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ पीसी. Now, if you see the information, first adjustment we have gone through, second adjustment, authorized share capital of Poonam Limited is 60,000 equity share of 10 each. So, Poonam Limited, maximum share Poonam Limited can issue is 60,000. 60 से ज़्यादा Poonam Limited issue नहीं कर सकते, because authorized share capital is the maximum share that company can issue throughout the life. As a purchase consideration of 7 lakh of Jhalak Limited, देखो यहाँ पे आपको रेडीमेड पीसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. झलक लिमिटेड का पीसी कितना है? 7 लाख रुपीस. तो परचेस कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख रुपीस ऑफ झलक लिमिटेड अब कैसे डिस्चार्ज होगा? हैज बीन गिवन 44,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. 44,300 का शेयर 10 रुपीज का ईच, 50% प्रीमियम यानी 15 रुपीज में इश्यू होगा. तो 44,300 इंटू 15 एंड रिमेनिंग ऑन कैश, जितना बाकी बचेगा यानी 7 लाख में से शेयर की अमाउंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग इज कैश. सिमिलरली आप जील का भी पीसी दिया हुआ है. जी लिमिटेड का पीसी है 92,500, उसमें से 5,700 शेयर्स 15 रुपीज में इश्यू करेंगे. 15 कैसे? 10 प्लस 5 15. यहां पे भी 10 प्लस 5 50% प्रीमियम 15 रुपीज में इश्यू करेंगे. रिमेनिंग इज इन द कैश. Then Poonam Limited has issued remaining shares to the public at 50% premium. Poonam Limited बाकी के शेयर रिमेनिंग यानी क्या हुआ? रिमेनिंग यानी जो 60,000 में से आपने झलक लिमिटेड को इश्यू किया, आपने जिल लिमिटेड को इश्यू किया, उसके बाद जो शेयर बचेंगे दैट इज रिमेनिंग शेयर. इट हैज बीन इश्यूड टू जनरल पब्लिक एट रुपीज 50% प्रीमियम यानी कितना हुआ? 15 रुपए में इश्यू करेगा एंड कैश विल बी रिसीव. इसका इंपैक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज, कैश इज ऑल्सो इंक्रीज, विल हैव इंपैक्ट इन द न्यू बैलेंस शीट. सो झलक एंड झील existing company amalgamated into Poonam Limited. Poonam Limited is a new company, acquire all asset liability except cash लेके नहीं जाएंगे. And Poonam Limited issue the shares for some amount, they issue the cash also. आप बोलोगे सर नया कंपनी है, कैश कहां से आ जाएगा? कैश बोला है कि रिमेनिंग सर इशूड इन कैश, जो कैश आएगा दे विल गिव इट टू दिस कंपनीज. एंड न्यू कंपनी नाउ इन एग्जिस्टेंस, उसका बैलेंस शीट बनाना है. सेलिंग कंपनी में झलक का सिर्फ हमें नेसेसरी अकाउंट्स यानी सेलिंग कंपनी का ट्रीटमेंट देना है. सेलिंग कंपनी के लिए आई हैव गिवन यू द स्टेप्स, यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स एंड विल फॉलो इट एंड आई विल टेल यू how it is been gone through the things. So सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन रहेगा पीसी का. यहाँ पे फॉर्चुनेटली पीसी का अमाउंट दिया हुआ है, बट हमें पीसी में शेयर से कैश हमें कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट योर कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ पीसी. देखो आप झलक लिमिटेड का पीसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लाख रुपीज एंड जिल लिमिटेड का 92,500. अभी पीसी कंसिस्टिंग ऑफ 2 थिंग्स. परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को एज अ पार्ट ऑफ पीसी 2 चीजें दे रहा है, शेयर्स एंड कैश. शेयर्स का इंफॉर्मेशन है, बैलेंसिंग वुड बी द कैश. अच्छा, झलक लिमिटेड कितने शेयर्स इश्यू हो रहे हैं आप देखो.
तो आपके 44,300 शेयर्स एंड 15 रुपीज में इश्यू हो रहा है. सो देखोगे तो 44,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 5 रुपीज प्रीमियम है, 50% यानी 5 रुपीज, 44,300 का 5 रुपीज, सो इट वुड बी 221,500. तो आपका टोटल हो गया 664,500. अब 7 लाख में से 664,500 के शेयर है, बाकी का बचेगा कैश, तो इसका डिफरेंस अमाउंट वुड बी द कैश. सो पूनम लिमिटेड इश्यू 6,64,500 शेयर्स, 35,500 कैश. इस 664,500 में 443 फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम. दिस विल बी एडेड नई बैलेंस शीट में. 443 आप ऐड करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड प्रीमियम वुड बी एडेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो झील लिमिटेड को कितने 92,500 में से कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं? 5,700. सो 5,700 इंटू 10, 57, 5 रुपीज प्रीमियम, 5,700 इंटू 5, इट वुड बी 28,500. सो टोटल शेयर्स हो जाएगा 85,500. 92,500 में 85,500 आपका शेयर है, रिमेनिंग इज इन कैश. कितना कैश होगा? 7,000. तो आपका परचेजिंग कंपनी का कैश कितना जाएगा? 35,500 प्लस 7,000 फॉर द मेकिंग पीसी. तो यहां पे आप देखोगे पीसी में दो चीजें हैं. एक वन दैट इज फर्स्ट थिंग इज शेयर्स, सेकंड थिंग इज कैश. Next, we need to find out the goodwill or capital reserve. How we find out the goodwill capital reserve? Goodwill capital reserve के लिए आपको दो चीजें कंपेयर करना है, नेट असेट्स टेकन ओवर एंड पीसी. आप कितना नेट असेट लेके आ रहे हो, सामने कितना पे कर रहे हो. पीसी तो हमारे पास है, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? नेट असेट्स टेकन ओवर. नेट असेट सारी असेट अक्वायर करेंगे एक्सेप्ट कैश. तो आप बैलेंस शीट में देखोगे, इफ यू सी इन द बैलेंस शीट, तो दीज आर ऑल असेट्स दे टेकिंग ओवर एंड लायबिलिटीज, बट कैश लेके नहीं जाएगा. सो इफ यू सी स्टार्टिंग विथ ऑल द असेट्स वी हैव लिस्ट डाउन. इफ यू सी इन द बैलेंस शीट में देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग 175, झील का है 50,000. सारी बैलेंस शीट की आइटम ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट इज टेकन ओवर. अच्छा, यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट नहीं है. अगर एडजस्टमेंट होता तो क्या हमें उसका वैल्यूएशन रिवाइज वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है, बट यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो वी हैव टू कंसीडर बुक वैल्यू लेस लायबिलिटीज में आपका है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सो योर टोटल लायबिलिटी एंड असेट माइनस लायबिलिटी, यू हैव ए नेट असेट 667,500, 83,750. आप बोलोगे सर गुडविल तो ऑलरेडी वी आर कैलकुलेटिंग, सो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया है दैट हैज नॉट बीन कंसीडर्ड. सो this is a net asset, it is to be considered with the PC payment. तो PC तो ऑलरेडी हमारे पास 7,92,500 ऑलरेडी है, तो उसको कंपेयर करना है PC से. तो दिस इज नेट असेट, कंपेयर इट विद द PC. सो परचेज कंसिडरेशन इन केस ऑफ झलक 7,92,500 नेट असेट. तो अगर आप देखोगे तो झलक लिमिटेड में 6 लाख के सामने 7 लाख का पीसी है, दे हैव पेड मोर, सो इट्स अ गुडविल. एंड इवन इन द झील आल्सो 83,000 के सामने 92 का पेमेंट हुआ है, सो हियर आल्सो इट इज मोर, सो पेमेंट इज मोर, सो इट्स अ गुडविल. सो टोटल गुडविल वुड बिकम इट्स 42,500 प्लस 8,750 इन द परचेजिंग कंपनी. सी गुडविल कैपिटल रिजर्व वी आर कैलकुलेटिंग फॉर परचेजिंग कंपनी. सेलिंग कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग कंपनी को पेमेंट मिल रहा है, दैट्स ऑल. हाँ, कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है वो हम उनका रियलाइजेशन में प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, बट गुडविल कैपिटल रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग कंपनी, बिकॉज परचेजिंग के लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि उन्होंने ज्यादा पेमेंट किया या कम पेमेंट किया हुआ है. नाउ हाउ मेनी शेयर्स परचेजिंग कंपनी, आप क्वेश्चन में देखोगे इट इज मेंशन दैट परचेजिंग कंपनी इश्यू द न्यू शेयर्स. तो कितने रिमेनिंग शेयर्स आर बीइंग इश्यूड, रिमेनिंग शेयर इश्यू हो रहे हैं. तो कितने रिमेनिंग शेयर इश्यू हो रहे हैं? तो रिमेनिंग शेयर यानी 60,000 में से आपने कितना झलक को इश्यू किया, कितना झील को इश्यू किया. सो इफ यू सी, सो टोटल शेयर्स माइनस गिवन इन द पीसी, टोटल आपके 60,000 शेयर्स थे, उसमें से झलक को 44,300, झील को 5,700. सो यस, इट कम्स टू 10,000 शेयर्स, बट दैट शेयर्स हैज बीन इश्यूड टू द जनरल पब्लिक इन द कैश. कितने में इश्यू हो रहा है? 50% प्रीमियम, यानी 10 रुपीज फेस वैल्यू, 5 रुपीज प्रीमियम. सो आपका शेयर बनेगा 10,000 इंटू 10, 1 लाख,
5 rupees premium, 10,000 into 5, 50,000, total amount received 1,50,000. अच्छा, आप सोचोगे सर ये आपने ब्रेकअप क्यों किया 1,50,000? क्योंकि फेस वैल्यू विल बी एडेड टू शेयर कैपिटल वेयरएज प्रीमियम विल बी एडेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे तो शेयर कैपिटल में आपको सिर्फ लिखना है फेस वैल्यू, प्रीमियम आप उसमें ऐड नहीं कर सकते. प्रीमियम हैज टू बी सोन सेपरेटली अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस under the head securities premium. So that is all we need. Basic calculation, we have calculated PC composition, goodwill capital reserve and remaining shares. Now we can go for the main answer, that is the ledger account in the books of selling company and balance sheet. Now ledger account, we need to prepare the ledger account in the books of Jhalak Limited. अब देखो Jhalak Limited में लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, तो बेसिक मैंने बताया था रियलाइजेशन बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा एंड इक्विटी शेयर होल्डर. देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है नहीं, तो एक आपका बनेगा कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, आपका कैश अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड परचेजिंग कंपनी दैट इज अ पूनम लिमिटेड का अकाउंट. एंड जो भी पूनम लिमिटेड से मिल रहा है, दो चीजें मिल रही है, एक तो इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर ऑफ पूनम लिमिटेड अकाउंट, एंड दूसरा कैश, तो वो तो हमने बनाया हुआ है. तो नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ द लेजर अकाउंट इन द सेलिंग कंपनी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक रियलाइजेशन बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बनेगा. यहां नहीं, इसलिए नहीं बनाया. कैश बैंक का अकाउंट बनेगा एंड परचेजिंग कंपनी एंड व्हाट एवर रिसीव, लाइक इक्विटी शेयर मिला है तो इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर मिला होता था प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी. दीज आर द अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर. अभी वी हैव टू फॉलो दोस स्टेप एज आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन यू. वेरी फर्स्ट स्टेप इन द सेलिंग कंपनी, वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लियर द बैलेंस शीट फुली. यानी आपकी बैलेंस शीट में जितनी आइटम्स है उसको एलिमिनेट करना है. ट्रांसफर टू दिस स्टेटेड अकाउंट एंड ट्रांसफर एट कौन सी अमाउंट पे, बुक वैल्यू पे. तो टू स्टार्ट विद दैट, सबसे पहले हम लोग असेट साइड की सारी आइटम, अच्छा कैश लेके नहीं जा रहे तो वो कैश आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, इट इज टू बी ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट एंड ऑल द लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज झलक लिमिटेड में दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, and share capital and reserve we have to transfer to equity shareholders account. So if you see, सबसे पहले सारी assets आप realization account में डेबिट करोगे, बिकॉज असेट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट होगा. एंड कहां पे ट्रांसफर, रियलाइजेशन. सो एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. तो सारी असेट्स, all the assets you have to debit to realization, land, building, machinery, furniture, pattern, debtor, BR, everything. Here one thing you have to be careful, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो you have to transfer at book value, कोई एडजस्टमेंट वैल्यू कंसिडर नहीं करना है. देन लायबिलिटीज, दो लायबिलिटीज है. अच्छा, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. ट्रांसफर करोगे तो डेबिट, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट. कहां पे, रियलाइजेशन. तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में दोनों लायबिलिटीज आपका क्रेडिट करना है. अभी असेट में कैश है, परचेसिंग कंपनी लेके नहीं जा रहा है तो कैश कहां लिखोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन. अगर परचेसिंग कंपनी लेके जाता तो आपको रियलाइजेशन में लिखना होता. लायबिलिटीज, दो लायबिलिटी टू क्रेडिट. अभी बच्चा, अब बैलेंस शीट में देखोगे, इफ यू सी इन द बैलेंस शीट तो सारी असेट्स आ गया. इफ यू सी ऑल द असेट हैज बीन कंसीडर्ड, ऑल लायबिलिटी हैज बीन कंसीडर्ड. अभी बचा शेयर कैपिटल एंड एक बच रहा है शेयर कैपिटल, एक बच रहा है पीएनएल का बैलेंस. दिस इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स. अच्छा, शेयर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. सो शेयर कैपिटल रिजर्व इज ओनरशिप ऑन दैट शेयर होल्डर, सो वी हैव टू ट्रांसफर टू शेयर होल्डर. अच्छा, शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. व्हेन यू ट्रांसफर यू टू डेबिट. सो शेयर कैपिटल रिजर्व टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. आप देखोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में वी हैव टू क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड पीएनएल. एंड if you see, is there any assets liabilities remaining? अब आप देखोगे all assets are taken care. देखो आप झलक की सारी assets आ गए. You have all the liabilities, share capital reserve, each and every item of the balance sheet is considered. Nothing is pending. So first step is complete. Clear the balance sheet fully. Each and every item is to be transferred to this stated account at book value. Second step, first step clearance of the balance sheet fully. Second step, PC due. Because selling company is gone for liquidation process. Liquidation process require only two steps: realizing the asset, the payoff liability. Our major asset liability has been transferred to purchasing company. So
we have got money due from them, so it's a PC due. What is a PC due? एंट्री क्या होगा? PC due का पैसा लेना है, रिसीवेबल है किससे? पूनम लिमिटेड। किसके लिए है? असेट्स के लिए, लायबिलिटी के लिए, नेट असेट के लिए। अभी नेट असेट कहां पे है हमारा? रियलाइजेशन में। तो आपको वहां से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली असेट व्हेन इट कम्स वी डेबिट, व्हेन इट गो वी हैव टू क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या क्रेडिट करोगे? रियलाइजेशन। सो एंट्री होगा पूनम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो एंड अमाउंट होगा पीसी का, तो पूनम लिमिटेड में हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, पीसी का अमाउंट था 7 लाख रुपीस, एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, उसमें लिखेंगे बाय पूनम लिमिटेड 7 लाख रुपीस। दिस इज पीसी ड्यू, परचेस कंसिडरेशन ड्यू। पैसा लेना है, रिसीवेबल है, तो पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा, असेट जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बट असेट कहां पे? अभी रियलाइजेशन में, सो यू हैव टू क्रेडिट द रियलाइजेशन। पीसी ड्यू, पीसी रिसीव, व्हाट वी आर रिसीविंग एज अ पार्ट ऑफ पीसी, हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है शेयर्स, हमें मिल रहा है कैश। अब देखो परचेसिंग कंपनी के लिए क्या है? शेयर्स आ रहा है 15 रुपीज का, उसके लिए फेस वैल्यू प्रीमियम कुछ रिलेवेंट नहीं है। हाँ, सॉरी, सेलिंग कंपनी के लिए। परचेसिंग कंपनी होता है तो हमें बाइफर्केशन करना होता है, क्योंकि फेस वैल्यू हमें शेयर कैपिटल में ऐड करना होता है, प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करना। बट सेलिंग कंपनी के लिए तो उनको शेयर आ रहा है 15 रुपए का, उसके लिए तो वैल्यू 15 रुपए, नो फेस वैल्यू, नो प्रीमियम। फॉर देम इट्स ए असेट विच इज रिसीविंग एट 15 रुपीज। तो आपको क्या मिल रहा है? दो चीज मिल रहा है, कैश मिल रहा है, एंड सेकंड यू आर गेटिंग कैश। तो कितना कैश शेयर्स कैश मिल रहा था? आप देखो पीसी का कैलकुलेशन में आप देखोगे तो हमें 6,64,500 का शेयर्स मिल रहा था, 35,500 का कैश मिल रहा था। तो इन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री होगा? व्हाट कम्स इन डेबिट? व्हाट कम्स इन डेबिट? इक्विटी शेयर ऑफ ए पूनम लिमिटेड डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो आप देखोगे कैश में हम लोग डेबिट करेंगे, एंड गिवर द क्रेडिट कौन है? गिवन पूनम लिमिटेड। तो कैश में आएगा 35,500, इक्विटी शेयर्स ऑफ पूनम लिमिटेड में आएगा 64,500, गिवर द क्रेडिट कौन है? गिवर पूनम लिमिटेड। तो पूनम लिमिटेड में बाय इक्विटी शेयर एंड बाय कैश 664। आप देखोगे तो वट एवर वी हैव रिसीव कैश, वी हैव रिसीव शेयर्स, सो बोथ दिस अकाउंट डेबिट एंड पूनम लिमिटेड गिवर द क्रेडिट, दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी आप देखोगे तो पूनम लिमिटेड में 7 लाख ड्यू था, 7 लाख रुपीज आ गया, तो दैट अकाउंट विल बी टेलिंग, ये खत्म, अकाउंट टेली हो गया। नेक्स्ट वुड बी, अब आपका फर्स्ट क्लियरेंस ऑफ द बैलेंस शीट फुली हो गया, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव। अभी कोई ऐसा एसेट है जो परचेसिंग कंपनी लेके नहीं जा रहा है तो उसको बेचना पड़ेगा, ऐसा कोई एसेट नहीं है, ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं। हाँ, कैश था, वो तो हमने पहले लिख लिया। ऐसा कोई एसेट नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो सीधा नाउ नेक्स्ट पेमेंट्स टू ओनर, क्योंकि सारी एसेट रियलाइज, सारी लायबिलिटी पे ऑफ ओनर। ओनर में सबसे पहले पेमेंट होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो तो है नहीं। नेक्स्ट इक्विटी शेयरहोल्डर्स, बट इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पेमेंट करने से पहले हमारे पास जो असेट लायबिलिटी बेचा है उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो हमने सब कहां पे डाला हुआ है? एक कॉमन पूल में। कहां पे? रियलाइजेशन में। तो आपको सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज करके फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है कि लॉस है। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल किया एंड डिफरेंस वी गेट इट 42,500 ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड डिफरेंस आया, यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मींस यू हैव अ प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो लॉस होता। तो दो लिखते डेबिट साइड पे, बट रिप्रेजेंट क्या होता है? क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, सो दिस 42,500 इज नथिंग बट इट्स ए प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे किसका राइट होगा? हु इज हैविंग राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो ये प्रॉफिट आपको लेके जाना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अभी यहां से इक्विटी शेयरहोल्डर्स को ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, इक्विटी शेयरहोल्डर्स में बाय रियलाइजेशन 42,500। अभी नाउ पेमेंट्स टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पेमेंट करना है। आप देखो पेमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पेमेंट के लिए हमारे पास एक तो ये पूरा कैश अवेलेबल है एंड ये शेयर्स है। दिस टू आर अवेलेबल, वी गिव इट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। एंट्री क्या होगा? रिसीवर द डेबिट, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इक्विटी शेयर ऑफ पूनम लिमिटेड जा रहा है। सो इक्विटी शेयरहोल्डर्स का अकाउंट डेबिट होगा एंड दिस टू अकाउंट, इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड दिस टू अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो उनको हम लोग कैश देंगे, तो कैश में बाय इक्विटी शेयरहोल्डर, उनको शेयर्स दे देंगे बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंड इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड इक्विटी शेयर्स एंड कैश।
Once you make the payment to equity shareholder, all the transaction over, then you have to close down the accounts and account must get tally. Equity shareholders का account tally करेंगे, tally हो जाएगा, cash account tally हो जाएगा and equity share of Poonam account भी tally हो जाएगा, and this both all the accounts get tally. So this is accounting treatment in the books of selling company. You may be asked, examination में you may be asked, accounting treatment in the books of झलक लिमिटेड एज वेल इन जिल. तो जिल लिमिटेड में भी आपको इतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे. तो उस केस में क्या करना है, इतने सारे अकाउंट नहीं बनाने का, हर एक अकाउंट में 2 कॉलम करने का. एक कॉलम आ जाएगा झलक का, एक कॉलम आ जाएगा झील का है. मीन्स यू डोंट हैव टू प्रिपेयर 2 सेट ऑफ अकाउंट, एक ही अकाउंट बट 2 कॉलम फॉर 1 झलक एंड झील. बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें एक ही अकाउंट डिमांड किया हुआ है. और नेक्स्ट आंसर इज बैलेंस शीट. हमें पूनम लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है. बट बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पूनम लिमिटेड का कैश चाहिए, कैश बैलेंस. तो पूनम लिमिटेड का कैश ट्रांजैक्शन क्या क्या है. तो पूनम लिमिटेड ने एक शेयर इश्यू किया हुआ है, उसका पैसा आएगा एंड दे आर पेइंग टू द झलक एंड झील. झलक एंड झील को कितना पे कर रहे थे. अब देखो झलक एंड झील को पे करते 3500 एंड 7000 एंड रिसीव कितना हो रहा था. तो रिसीव हो रहा था, आपने यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था, रिसीव हो रहा था 1,50,000, इतना रिसीव हो रहा था. So, if you see here, $1,50,000 कैश आ रहा था, उसमें से झलक को पे किया 3500, झील के लिक्विडेटर को पे किया 7000. सो रिमेनिंग कैश बैलेंस इज 1,07,500. नई बैलेंस शीट में कैश बैलेंस आएगा 1,07,500. So now we have to prepare the balance sheet. Balance sheet, always we have to go for a particular way out. It's not you take one item from asset side, one item from liability side. You complete one side, then other side. So we start with the liability side. सबसे पहले liability side के 3 bifurcations होता है balance sheet में. shareholders fund, non current यानी long term liability and current liability यानी short term liability. अब न्यू कंपनी का बैलेंस शीट क्या है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कंपनी. दोनों कंपनी का बैलेंस शीट का टोटल है. तो हमें दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया था, कोई भी एसेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ टोटल अप करना है. बट सबसे पहले तो शेयर कैपिटल लिखना होगा. पूनम लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने 60,000 शेयर थे, जिसमें हमें 44,300 झलक को इश्यू किए थे, 92,500 झील को, 10,000 पब्लिक को इश्यू किया था. तो 60,000 शेयर्स. सो इक्विटी शेयर्स में आप देखोगे 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो 6 लाख प्लस प्रीमियम 60,000 शेयर इंटू 5, 3 लाख रुपीज हमने प्रीमियम इश्यू हुआ है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर हमने 15 में इश्यू किया था. अब देखो कंबाइंड नहीं लिख सकते आप, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू लिखना होता है एंड प्रीमियम जो शेयर्स पे रिसीव होता है उसको सेपरेटली शो करना होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. अभी बैलेंस शीट में आप देखोगे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, देखो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है. So there is no non-current liability. करंट लायबिलिटी में कौन सी आइटम है. करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है. क्रेडिटर का टोटल लिखना है, बिल्स पेबल का टोटल लिखना है. सो क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल दोनों का टोटल कर दिया. सो टोटल कम्स टू 945, 250. अभी असेट साइड, तो असेट साइड में आप देखोगे बैलेंस शीट में फिक्स असेट. फिक्स असेट कितनी है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, ये 4 फिक्स असेट. इनमें से लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर उसको टेंजिबल फिक्स असेट बोलते हैं, पेटेंट इज कॉल्ड इंटेंजिबल. देन हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया था, गुडविल इज ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड. तो आप बैलेंस शीट में देखोगे सबसे पहले हम लोग फिक्स असेट लिखेंगे, उसमें टेंजिबल, टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स. सिंपली वी हैव टू टोटल अप, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों का टोटल करके यहाँ पे बैलेंस शीट में से यहाँ पे दोनों का टोटल लिखना है. लैंड बिल्डिंग का टोटल 175 प्लस 50, मशीनरी 350, फर्नीचर 25, पैटर्न 37,500 प्लस, दोनों का टोटल लिखना है. इंटेंजिबल में 2, गुडविल हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, एंड पैटर्न. करंट असेट्स, करंट असेट में कितनी आइटम है, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल. एक व्हीकल है, दैट इज टू बी शोन पार्ट ऑफ द फिक्स असेट. व्हीकल करंट असेट इज द फिक्स असेट. एंड बैंक बैलेंस जो हमने कैलकुलेशन अभी किया हुआ था.
सो स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक. कैश बैंक का हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेशन किया था 1,07,500. सो यू टेक द टोटल, दोनों के बैलेंस शीट्स के असेट्स का टोटल करके यहाँ पे लिखना है एंड यू विल हैव दिस वन. सो दिस इज योर बैलेंस शीट इन द न्यू कंपनी. इंपॉर्टेंटली इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ था. देन गुडविल के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ था. न्यू शेयर्स, तो शेयर्स के लिए हमारे पास वर्किंग नोट है, जिसका हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया हुआ है. You just take the total of all the assets and liabilities and you put into that. This will be your balance sheet. Thank you very much.